गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज पांडे एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर नीट। एंड नेम ऑफ रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. Okay, it is most important reaction. What is Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction are divided into two categories. First is alkylation, second is acylation. Okay, Friedel-Crafts reaction are of two types. First is alkylation reaction, Friedel-Crafts alkylation reaction, and second is Friedel-Crafts acylation reaction, acylation reaction. Okay, let's start. What is the two type of Friedel-Crafts reaction? When firstly we discuss about the Friedel-Crafts alkylation reaction. Alkylation reaction. Okay, when phenol like this react with alkyl halide like RX in presence of anhydrous AlCl3, then it form ortho alkyl phenol or para alkyl phenol OH and R, where R is alkyl group or alkyl group. If we take any type of alkyl group in presence of anhydrous AlCl3 like CH3, Cl, anhydrous AlCl3, then formation of orthocresol or paracresol takes place. Okay, its name is orthocresol and its name paracresol. But this mechanism, in this reaction there are addition of alkyl group is known as alkylation. Okay, तो आप देख सकते हैं एल्काइल ग्रुप का ऐड हो जाना ही क्या कहलाता है, एल्काइलेशन. आफ्टर द नॉलेज ऑफ Friedel-Crafts alkylation reaction, we discuss about the Friedel-Crafts acylation reaction. Acylation reaction, बेटा क्या होता है acylation reaction? इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि एसाइल ग्रुप होता क्या है. CH3 C double bond O Cl, it is acetyl chloride or acyl chloride. इसमें CH3 C double bond O को एसाइल ग्रुप कहते हैं. एसाइल ग्रुप का अर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन फिनाल पर ऐड हो जाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, acylation. Okay, let's start. This is the phenol and it react with acetyl chloride or acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. Then acylation occurs at ortho position or para position of the phenol. The addition of acyl group
toward the ortho or para position of phenol is known as Friedel-Crafts acylation reaction. ओके, तो बेटा आप देख सकते हैं जैसे ही फिनाल में एसाइल क्लोराइड को हमने ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें मिक्सचर प्राप्त हो जाता है किसका, एसाइलेशन के केस में अर्थो एसाइल फिनाल या फिर पैरा एसाइल फिनाल. ओके, आफ्टर द नॉलेज ऑफ एसाइलेशन रिएक्शन it is very necessary to you that you easily understand about the mechanism of the reaction. Okay, let's start. What is the mechanism of acylation and what is the mechanism of alkylation? Okay, mechanism. It involves in following step. It involves in following step. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट, स्टेप फर्स्ट. इन दिस step CH3Cl you can take RX instead of CH3 and Cl. Okay, which react with AlCl3. अब बेटा आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की हाई होने से ये बॉन्ड किधर ब्रेक कर जाएगा, क्लोरीन की तरफ. CH3 become positive and Cl become negative, and AlCl3 is also known as neutral electrophile because it not completed their octet. न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो Cl यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा. आफ्टर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन or negative charge from Cl to AlCl3, formation of an electrophile methyl carbocation as well as AlCl4 न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस. अब बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल बना और यहाँ पर बन जाता है एक न्यूक्लियोफाइल. ये पहले स्टेप में होता है. स्टेप सेकेंड देखते हैं क्या है. स्टेप सेकेंड, इन दिस स्टेप फिनॉल फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनाइन इंटरमीडिएट. बट हाउ इट इज पॉसिबल, यू कैन सी हियर. सबसे पहले ये बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, सेकेंड कार्बन पर. फर्स्टली दिस पाई बॉन्ड break toward second position of carbon in phenol and oxygen which contains lone pair of electron. It transfer their lone pair of electron toward the positive center of carbon or first position of carbon. आप देख सकते हैं यहाँ पर OH के पास लोन पेयर है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने लोन पेयर को कहाँ ट्रांसफ़र करता है बेटा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है. फर्स्ट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इसलिए हो रही है क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होकर जा रहा है सेकेंड पोजीशन पे. अब जैसे ही यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक करके जाता है, आप देखिए, यू कैन सी हियर दिस ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, सेकेंड कार्बन बिकम कार्बोनाइन and here oxygen become positive charge with hydrogen and this phenyl ring contains 2 pi bond. अब देखिए, this pi bond also break toward the 4th carbon atom to maintain carbanion and carbanion moves toward the
fourth position of phenol. Okay, after this negative charge formation, this pi bond also break toward another position like 6 carbon atom of phenyl ring. Then this negative and this positive form pi bond, and here it become negative charge carbon ion प्लस ETC. और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं. ये हो गया हमारा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बेनायन इंटरमीडिएट. बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना फिनॉल का, जो कार्बेनायन इंटरमीडिएट के फॉर्म में है. अब जैसे ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तो हम स्टेप 3 यहाँ पर बनाते हैं. क्या होगा? इन दिस स्टेप the resonating structure of phenol carbanion react with इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है? मिथाइल कार्बनायन. दिस नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द मिथाइल टूवर्ड इटसेल्फ. या इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है? एक्सेस है. जैसे ही ये दोनों आपस में ऐड होते हैं, यू कैन सी हियर दिस OH प्लस डबल बॉन्ड form addition product. Okay, in this situation the nucleophile is also present in the form of AlCl4. Okay, and the electronegativity of chlorine is greater than aluminum. Then this bond break toward chlorine atom which become negative charge chloride, and AlCl3 comes out in the form of side product. Okay, to maintain this structure, this hydrogen also break, this bond break from hydrogen to carbon, and this bi bond break toward the oxygen, as well as this oxygen accept pi bond electron toward itself, it become OH, and first carbon become positive charge, second carbon become negative charge. This positive and this negative charge combine to form pi bond, and formation of orthocresol takes place, and this H plus this Cl minus removed in the form of HCl in the reaction. Okay, तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर इस तरह से मैकेनिज्म को हम लेकर चलते हैं. कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए. अब वी डिस्कस अबाउट द एसाइलेशन मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. एसाइलेशन में क्या करना है? कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आप समझ नहीं सकते हैं. बस चेंज क्या करोगे आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जहाँ पर CH3 है वहाँ हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl. आप देख रहे हैं एसाइल क्लोराइड हो गया फर्स्ट स्टेप में. तो
अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl माइनस होगा, AlCl3 Cl माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा AlCl4। बट इलेक्ट्रोफाइल यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा बेटा, और यह हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एसाइल कार्बोकटायन। एसाइल कार्बोकटायन भी यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल है। सेकेंड स्टेप में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज सच चलेगा। थर्ड स्टेप जब आप यूज करोगे तो बस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के जगह CH3 के जगह हम ले लेंगे C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज एंड CH3 एसाइल कार्बोकटायन आपके सामने दिख रहा है। जहाँ जहाँ CH3 है आप वहाँ क्या लगा दोगे C डबल बॉन्ड O CH3, और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एसाइलेशन का मैकेनिज्म भी आपके सामने है। देयर इज नो डाउट दिस इज हार्ड first time, but after the knowledge of acylation and their mechanism it is also clear that it is very easy। ये बहुत ही आसान है बेटा। जैसे ही आप मैकेनिज्म में एसाइल क्लोराइड लेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की मैक्सिमम होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन जो कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है और यह बन जाता है क्या न्यूक्लियोफाइल AlCl4 के रूप में, और यहाँ एसाइल कार्बोकटायन यहाँ पर फॉर्म होता है। अब यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने जैसे पहले आपको समझाया एल्काइलेशन में, वैसे ही एसाइलेशन में कोई चेंज नहीं। चेंज कहाँ करना है, जहाँ पर एल्काइल ग्रुप था मिथाइल ग्रुप वहाँ पर एसाइल हो गया, एसाइल कार्बोकटायन, यहाँ पर भी एसाइल ग्रुप और यहाँ पर भी एसाइल ग्रुप। तो अगर अर्थो पोजीशन पे हम मैकेनिज्म करा रहे हैं तो हमको अर्थो एसाइलेशन फॉर्म हो जाता है, प्राप्त हो जाता है फिनॉल में। तो बेटा ये रिएक्शन कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। दो बातों को इसमें याद रखिएगा कि एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप इन फिनॉल इज नोन एज एल्काइलेशन, सेकेंड इज एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इन द फिनॉल इज नोन एज एसाइलेशन। ओके, after the knowledge of Friedel-Crafts reaction, it is very necessary to you that you know another most important reaction of the phenol। ओके बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा रेमर-टिमान रिएक्शन। रेमर-टिमान रिएक्शन, रेमर-टिमान रिएक्शन में रेमर-टिमान रिएक्शन कैसे चलेगा बेटा रेमर-टिमान रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेमर टिमान रिएक्शन, रेमर-टिमान रिएक्शन क्या होता है बेटा रेमर-टिमान रिएक्शन, आइए देखते हैं। When phenol react with chloroform CHCl3 and NaOH, CHCH3 means chloroform and NaOH, then firstly formation of sodium phenoxide takes place
with addition of CH Cl2. Okay. Further, when NaOH react with CHCl2, then after hydrolysis, basic hydrolysis, formation of you can take acidic hydrolysis also, formation of ortho hydroxy benzaldehyde takes place। बड़ा ये हमारा राइमर टिमान रिएक्शन है। अब इसके मैकेनिज्म को आप देख लीजिए तो ये सारी चीज़ें आप क्लियरली समझ में आ जाएंगी। मैकेनिज्म, it involve in following step, it involves in following steps। कैसे होता है देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, बेटा पहले स्टेप में आपके सामने है आपके सामने होगा फिनॉल, यह रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। ओके बेटा यहाँ से इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं OH माइनस and Na प्लस, टू टाइप ऑफ रेडिकल्स आर फॉर्म। Due to high electronegativity, this oxygen also attract the electron from hydrogen, then hydrogen become negative charge. This negative charge hydrogen attracted by OH group, and this O negative also attract Na plus toward itself. Then formation of sodium phenoxide takes place। Okay, by the removal of water। In second step, where CHCl3 is present, like Cl, Cl, H and Cl। In this situation, firstly, by the removal of Cl, it become we can take here phenoxide ion, sodium phenoxide, and here बेंजीन रिंग कंटेंस हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि बेंजीन के पास पहले से क्या होता है, हाइड्रोजन। यहाँ से बेटा इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं, जो कि इस पोजीशन पे ब्रेक होगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करता है, यहाँ फिनॉल ONA इस नेगेटिव चार्ज पर CHCl2, देखिए यहाँ से CHCl2, क्योंकि यह नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा किसको, इस पॉजिटिव चार्ज को। अब आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर एक H है और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। रिएक्शन में आपके पास Cl माइनस बना है,
Cl माइनस आप ले लीजिए पहले। इस बॉन्ड को जैसे ही हम ब्रेक करते हैं, यह नेगेटिव चार्ज क्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बाहर क्या बन जाता है बेटा, Cl। और Cl के फॉर्मेशन होने के बाद आप देख सकते हैं कि यह ONA यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और आपके सामने हो जाएगा CHCl2। ओके, ये सेकेंड स्टेप। स्टेप थर्ड, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ONA, यहाँ पर होगा HCl और Cl, 2 Cl है। हाइड्रोलिसिस आप करा दीजिए, H प्लस आब्लिक H2O। तो हाइड्रोलिसिस बेटा यहाँ पर 3 टाइम होगा। पहले तो हाइड्रोलिसिस यहाँ होगा, फिर हाइड्रोलिसिस यहाँ होगा। तो Cl जिधर है उधर क्या H2O से H प्लस चला जाएगा Cl के पास, इधर भी क्या आ गया, H प्लस, 2 प्लस आ गए, चूँकि यह N मॉलिक्यूल आप लेंगे हाइड्रोलिसिस में। अब OH किधर चला जाएगा, OH माइनस एंड OH माइनस, ये Cl से जुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की जब अधिक है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्लोरीन की तरफ, यह भी ब्रेक हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। और जैसे ही यह ब्रेक होगा उसी टाइम पर आप देखिए रिएक्शन में यह O है, Na है, ये डबल बॉन्ड, यह हो गया C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और H, इतना बना। बाहर निकल गया 2HCl, देख सकते हैं एक HCl यहाँ, एक HCl यहाँ बाहर निकल गया। जैसे ही HCl बाहर निकल जाता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, दिस बॉन्ड आल्सो ब्रेक टुवर्ड ऑक्सीजन एटम and this bond break toward oxygen atom from carbon, as well as water is removed, then minus H2O, this structure become O, Na and C double bond OH, and this water molecule also break in presence of base like NaOH, then in presence of base and H plus OH minus, H2O जब ब्रेक होगा बेटा तो O की तरफ H जुड़ जाएगा, Na की तरफ OH जुड़ जाएगा, तो बाहर निकल जाता है NaOH और फॉर्म हो जाता है हमारा। आगे रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है आप देख सकते हैं, यह हो गया OH, यहाँ पर हो गया CHO, और यही हमको फॉर्म करना था। तो ये हो गया राइमर-टिमान रिएक्शन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर the examination and known as Reimer-Timan reaction. Okay, after knowledge of Reimer-Timan reaction, we also try to understand about the coupling reaction. What is coupling reaction? You can see here, it is also most important reaction of the phenol, known as coupling reaction. कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। when phenol
react with HCN plus HCl, also ZnCl2 plus HCl. Then it form CH double bond NH, which undergoes hydrolysis to form NH3 and CHO. This is the coupling reaction. But how this reaction is possible? You can see the mechanism of this reaction. Mechanism. Okay. It involves in following steps. तो बेटा देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होता है. स्टेप फर्स्ट, इन दिस स्टेप Zn सबसे पहले स्टार्ट होता है रिएक्शन बेटा ZnCN का ट्वाइस. ध्यान दीजिएगा, ZnCN का ट्वाइस प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl. बेटा इस रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होगा किसकी तरफ? Cl की तरफ. Cl become negative, H become plus, and in this situation this bond also break toward Cn. तो in first step formation of HCl 2 molecule and 1 molecule of ZnCl2 takes place. स्टार्ट होता है यहीं से रिएक्शन. ओके, हालांकि रिएक्शन में ये आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, बट ये स्टार्ट होता है यहीं से. स्टेप सेकेंड, अब आपके पास HCl, अब मैं इसको ले रहा हूं दोनों को, HCl है, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा किसकी तरफ? N की तरफ, और यहां से रिएक्शन आगे चलता है. H और Cl यहां से ऐसे ब्रेक होता है, यहां से बाहर निकल जाता है Cl माइनस, और इधर आपके पास बनता है HC पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH, क्योंकि नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा यह NH हो जाता है. तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया किसका? इलेक्ट्रोफाइल का, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हो गया. स्टेप थर्ड, इस स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर हम फिनॉल लेंगे, क्योंकि फिनॉल में हर जगह पे क्या जुड़ा होता है बेटा? हाइड्रोजन. तो चूंकि हमको एडिशन यही कराना है, इसलिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि यह होगा कैसे. तो सबसे पहले यह पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. जैसे ही ब्रेक होगा तो इसको चाहिए कोई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यह नेगेटिव हुआ. तो हमारे पास है CH प्लस डबल बॉन्ड NH. This electrophile attracted toward the second position of phenol, and then
this OH, first position of phenol become positive charge. This is the hydrogen and this CH double bond NH. अब आप देख सकते हैं रिएक्शन में यहाँ पर Cl लिया गया है, ये यहीं पर आकर रिएक्शन करता है और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और ये Cl माइनस इस हाइड्रोजन को जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बाहर क्या निकल जाता है, HCl। जैसे ही HCl बाहर जाता है रिएक्शन में, यू कैन सी हियर OH डबल बॉन्ड CH double bond NH and this pi bond also present toward this atom। अब ये हमारा सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन हो जाता है। यहीं से रिएक्शन हम आगे लेकर चलते हैं। इस रिएक्शन में प्रोसेस हम देखते हैं किसका, हाइड्रोलिसिस का। तो ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कहाँ होगा, इस पोजीशन पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की अधिक होने से यह दोनों ही बॉन्ड किधर ब्रेक होंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो H2O जब ब्रेक करेगा तो OH जाएगा, OH 2 टाइम किधर जाएगा, C की तरफ, और H प्लस किधर जाएगा, N की तरफ। तो बाहर हमारा निकल जाता है NH3। देखो NH पहले से 2 हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस से मिला, इसको NH3 बाहर हो गया। बट यहाँ पर you can see here OH and this carbon contains OH 2 molecule. After removal of water from this molecule, formation of final product takes place.